Hello students, I am Rajni Kabir from Power of Dera Saraswati Vidya Mandir, PGT English. Okay, today I am going to teach you third chapter of Flamingo. The name of the chapter is Deep Water. Okay, so I am going to tell you about the author, then notes of this chapter, question answer and difficult words. Okay, first is about the author. So the author of this chapter is William Douglas. Okay, and he is an autobiographer and who was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. So Yakima is the name of the place and river also. So there is the description of the place. So he spent his 2 years in Yakima. However, he got tired of this teaching and other life. Then he decided to pursue a legal career. And then he met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to प्रेसिडेंट के एडवाइजर और उनके फ्रेंड हो गए. He retired in 1975 with a term lasting 30 years and remains the longest serving justice in the history of the court. 35 ईयर जो था उनका कैरियर एज अ लॉयर रहा और वो एक हिस्ट्री में मतलब एक काफ़ी लॉन्ग टर्म था. The following excerpt is taken from Of Man and Mountains, and following except in part, The Deep Water is taken from his writing Of Man and Mountain, which is written by William Douglas. उसका ही एक part है. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this chapter, we are going to study how William Douglas was going to drown in a pool when he was a young boy. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. Okay, so in this chapter, first of all, he will share us his experience, how what did he feel at that time of drowning and how he tried to save himself and what happened after it, how the fear seized him, then how he tried to overcome on this fear. Notice how the autobiographical part of this lesson is used to support his discussion of fear. हम इसमें देखेंगे कि उन्होंने जो अपना ये डर बताया है वो हमें कैसे सपोर्ट करता है किसी भी तरीके के हमारे डर को दूर करने के लिए. So first paragraph from it had happened to in the water when the misadventure happened. Okay. The author was around 10 years old when this misadventure happened with him. He is trying to tell us what happened with him when he was 10 years old. He tried swimming in YMCA pool. So he also has a fear from water when he was 10 years old. But why he has a fear of water and why he decided to learn swimming? The author tells about his old memories of learning swimming with his father. इसमें नैरेटर बताता है अपनी मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज विद हिज फादर व्हेन ही had started fear from the water. Yeah, he had a hydrophobia. When he was 3 or 4 years old, he went to California with his father, California beach, and when he was enjoying there, at the same time surf fall him into the water. ठीक तभी क्या होता है जब वो वहाँ अपने फादर के साथ गए हुए, बिकॉज ही वॉज 3 और 4 years old, छोटे से बच्चे थे और समुद्र की लहरें आपको पता है कितनी तेज़ प्रेशर के साथ आती हैं. बड़ा तो अपने आप को मतलब बैलेंस कर लेता है, पर छोटा बच्चा सडनली अगर वो खेल रहा है नहीं कर पाता. तो उसने उसको नॉकडाउन कर दिया जैसे ही समुद्र की लहर आई वेव और वो बच्चा नीचे गिर पड़ा. पानी की लहर जो थी उसके ऊपर से होकर चली गई. तो उस समय आप खुद मतलब फील करके देखिए हाउ विल यू फील सडनली अ प्रेशर ऑफ वाटर केम ओवर ऑफ यू. ओके, so at that time he frightened and he was unable to take breath, but his father was laughing at him. Why his father was laughing? Because he don't want that his son should be afraid, frightened with that happening. His introduction to YMCA revived the old and pleasant memories he tries to learn by watching other boys. तो नैरेटर ने ये 10 साल की उम्र में क्यों डिसाइड किया स्विमिंग सीखना? क्योंकि उसे अभी भी उस घटना के बाद डर लगता था पानी से. तो उन्होंने सोचा इस डर को दूर करना चाहिए और उसके लिए बेटर वे यही है कि वो स्विमिंग सीखें. और उसके लिए सेफ जगह कौन सी थी? YMCA पूल, जो कि याकीमा में थी.
याकिमा प्लेस में याकिमा रिवर भी थी जो कि बहुत ही ट्रेचरस थी, बहुत ही डेंजरस थी। वहाँ पर मतलब स्विमिंग सीखना छोटे बच्चे के लिए तो सेफ जगह नहीं थी, तो वो उसकी मदर टाइम टू टाइम उसको वार्न करती रहती थी कि ताकि वो वहाँ ना जा पाए। वहाँ जो भी इंसिडेंट्स होते थे वो उसको रिमाइंड कराती रहती थी। तब ये कहता है कि जब वो स्विमिंग पूल पर गया अपने वाटर विंग्स लेकर, तो उसने बाकी बच्चों को देखकर दूसरे बच्चों को एक्टिंग की, यानी उसको उसकी नकल करते हुए उन्होंने पानी के अंदर गए वाटर विंग्स लेकर, और पहले उन्होंने पैर से पैडलिंग करनी शुरू की। वो कहते हैं जैसे ही पानी के अंदर गए तो उनका जो पुराना डर था वो उन पर हावी हो गया, मतलब उन्हें डर लगने लगता था पानी के अंदर जाकर। फिर भी उन्होंने बच्चों को देखकर हिम्मत की, अपने डर को बाहर भगाने की कोशिश की और पैरों को पानी में पहले मतलब रिलैक्स फील कराया। अभी उन्हें 2-3 दिन ही हुए थे, थोड़ा सा पानी से उन्होंने अपना डर बाहर निकाला ही था कि फिर से उनके साथ एक मिसहैपनिंग। फिर क्या हुआ, आई वेंट टू द पूल when no one else was there. These are the lines of the paragraphs. So one day he went alone at the pool. He is telling us the mishappening, what happened with him in YMCA pool. कि when he was alone at the pool, एक दिन जब वो pool पर गए तो बिल्कुल अकेले थे, वहाँ कोई भी नहीं था। A muscular boy of 18 came to him and tossed the author in deep end of the pool. नैरेटर उस समय क्या कर रहे थे, वो वहाँ बैठकर पुल के किनारे पर वेट करने लगे कि जब कोई आएगा तो वो पुल के अंदर जाएंगे। He could not dare to go into the water alone. So when he was sitting, the same time a muscular boy, a bully boy came there and what did he do? उसने मजाक में उसे क्या किया, क्योंकि नैरेटर जो थे बहुत पतले से थे उस समय, 10 या 11 साल के थे। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उसको पूल में फेंक दिया। पुल जो था ये इसके जो दोनों साइड थे वो डीपनेस जो थी डिफरेंट थी। बच्चों के लिए 3 और 4 फीट था और जो उसका सेकेंड एंड था वो 9 फीट डीप था। तो उस लड़के ने उस बच्चे को उठाकर, नैरेटर को उठाकर किस साइड में फेंका, 9 फीट डीप उसमें फेंका। ठीक है, तो जैसे ही उसको फेंका, अब अचानक से मेंटली तो बच्चा कोई प्रिपेयर नहीं है, जैसे ही उसने उसको फेंका उसने वो क्या हुआ, सीधा पानी के अंदर गया। ओके, प्रेशर के साथ। ठीक है, he was frightened and planned to hit the bottom and jump out from the water. उसने प्लान, वो डर गया था और उसने उस समय एक प्लानिंग की कि जैसे ही वो बॉटम पर टच करेगा उसके फिर वो एक जंप लेंगे, कॉक की तरह पानी के बाहर आने की कोशिश करेंगे और उस पर लेट जाएंगे तथा तैरकर बाहर। He came out slowly and saw nothing but water. उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन वो स्पीड के साथ कॉक की तरह बाहर नहीं आए, बल्कि धीरे धीरे पानी के ऊपर आए और वो भी सिर्फ उनका मुंह तक, मतलब वो पानी से बाहर आ पाए और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, अपने चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दिया। His mouth was under water, therefore no sound came outside the pool. क्योंकि उनका मुंह जो था पानी के अंदर था, that's why when he was trying to shout, तो his voice cannot come out of the water. पानी की वजह से उनकी आवाज़ बाहर नहीं जा पा रही थी। He tried to bring his legs up, but he felt his legs paralyzed and raped. क्योंकि वो एकदम से पानी के अंदर गए थे तो पानी जो था वो उनके फेफड़ों के अंदर चला गया था मुंह के द्वारा, तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके लंग्स फट जाएंगे। थे द लंग्स वर एक्टिंग टू हिम। सो व्हेनेवर ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की कि अपने पैरों को ऊपर उठाएं, लेकिन उनके ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उनके पैर पैरालाइज हो गए, बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, डेड हो चुके थे एकदम से। सो ही वॉज सिंकिंग टू द बॉटम अगेन, मतलब उन्होंने 3 से 4 बार कोशिश की कि उससे बॉटम से टच करें और ऊपर जंप लगाएं, लेकिन हर बार वो सफल नहीं हो पाए, अनसक्सेस रहे और बार बार बॉटम पर वापस आ जाते थे। He lost all his breath, his lungs was paining, his head was throbbed, he was getting disease। और फाइनली वो मतलब इतने थक चुके थे कि अब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनके जो लंग्स थे वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे। देयर वाज एन एक एंड हिज हेड वाज थ्रॉब्ड, और उनका सिर जो था वो भी एकदम सुन्न हो चुका था। ही वाज गेटिंग डिजी, मीन्स इस समय अब उनको बेहोशी सी आने लगी और उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे वो स्पेस में हो, मतलब एकदम से शांति चाहती हो चारों तरफ। बट ही रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी that I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface. I would lie flat on water and strike out
with my arms and thrust with my legs, then I would get to the edge of the pole and be safe. फिर से उन्होंने वही स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहा उसके बावजूद भी, और लेकिन कि वो मतलब जंप लगाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे और आने के बाद फ्लैट लेट जाएंगे और अपने आप को किनारे पर लाने की कोशिश करेंगे बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. So what happened again? When he tried that strategy upon him, he went to the bottom. He had terror seized him. He was paralyzed underwater. कि जब भी वो जैसे बॉटम पर गए उन्होंने उस डर ने उनको सीज कर लिया, जकड़ लिया बहुत बुरी तरीके से, और ही वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, पानी के अंदर वो पैरालाइज हो गए. ओनली हिज हार्ट एंड पाउंडिंग इन हिज हेड सो दैट आई एम अलाइव. वो हमें बताते हैं कि सिर्फ उनके हार्ट की धड़कन और उनके दिमाग की जो मतलब सेंस में था वही ये शो कर रहा था कि वो अलाइव हैं. अदरवाइज ही वॉज स्विमिंग, हिज बॉडी हैज give up, that he has become senseless. मतलब उनकी बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, उसमें जान नहीं रही थी. He tried to jump but it made no difference. हर बार उन्होंने कोशिश की लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया उनकी जंपिंग में. He was still surrounded by water. हर बार वो पानी के अंदर ही अपने आप को पाते थे. This time all efforts and fear ceased. He was moving towards peaceful death. मतलब अब उन्होंने सारे प्रयास छोड़ दिए क्योंकि वो बेहोश होने लगे और उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे डेथ से पहले की शांति आ गई हो. The writer was in peace when he was going to senseless. तो how he was feeling at that time, क्या फील कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था बिल्कुल चारों तरफ पीस है. When he came to consciousness he found, और जब उनको होश आया, when he came into sense he found himself lying on the side of the pool with the other boys nearby. उन्होंने अपने आप को एक पुल के किनारे पर पड़ा हुआ पाया और दूसरे बॉयज उसके आसपास थे, यानी उन्हें पुल के बाहर किसी के द्वारा बाहर निकाला गया था. टेरर दैट ही हैड एक्सपीरियंस इन द पुल नेवर लेफ्ट हिम. और उसके बाद उस डर ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा. वो जब भी पानी के आसपास भी जाते वो डर जो था उन्हें जकड़ लेता था. अभी तक इतना डर नहीं था लेकिन इस घटना के बाद वो पानी से बहुत ज़्यादा डरने लगे थे. जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो दूसरों को देखते थे एंजॉय करते हुए, वाटर स्पोर्ट गेम्स जो होते थे उन सबको एंजॉय करते हुए, स्विमिंग, कैनोइंग, बोटिंग एसेट्रा. तो ही ऑल्सो वॉन्ट टू डू ऑल दोज थिंग्स. तो उनके अंदर भी इच्छा होती थी कि मैं भी इन सब चीज़ों को एंजॉय करूँ. ही ऑल्सो वॉन्ट टू डू स्विमिंग. So he spoiled many of his expeditions of canoeing, swimming and fishing. Means उनकी जो ये इच्छा इतनी spoiled हो चुकी थी. Canoeing is the name of the boat also. Okay, swimming and fishing. ये सारी चीज़ें जो थी वो उनको enjoy करने थे. That has become spoiled due to his fear of water. Whenever he was in water, the terror returned. Henceforward, the writer tried to terrorize terror itself. जब भी वो पानी के अंदर जाते तो वो टेरर उनका वापस आ जाता था. जो डर था वो फिर से उन पर सवार हो जाता, हावी हो जाता था. Henceforward the writer tried to terror himself. आखिर उन्होंने मतलब राइटर ने कोशिश की वो डर से नहीं डरेंगे, वो उस डर को अपने आप ही दूर करेंगे. Once he took courage, the terror vanished. और उसके लिए उन्होंने कोशिश की और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया. लेकिन उसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और उसी की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप उस इंस्ट्रक्टर ने उनके डर को दूर भगाया. हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ओके, वंस ही टुक करेज द टेरर वैनिस्ड. और जब उन्हें ये लगा कि हाँ उनका डर जो है काफ़ी कुछ बाहर निकल चुका है, द एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर थ्रू सम इम्पोर्टेंट लाइट्स ऑन द सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो उन्होंने अपने अनुभव से कुछ इम्पोर्टेंट लाइट्स वो डाली है, प्रकाश डाला है अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर. वो कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ पेन और प्लेजर इन चाइल्डहुड रिमेन इन द सबकॉन्शियस. वो अपने पेन का अनुभव और जो प्रसन्नता थी बचपन की, वो कहते हैं कि अगर हमने बचपन में जो हमारे ऊपर हावी हो गया उस डर को, उसको दूर नहीं किया तो वो हमारे साथ होल लाइफ रहेगा. तो हमें उसे उसी समय दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. माइंड एंड इन्फ्लुएंस आवर फीलिंग लेटर टू. और ये हमारे माइंड और उस पर हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, हमारी फीलिंग्स पर बात तक रहता है.
सवाल. The fear of water acted on the writer in that way. Even after being an expert in swimming, the writer felt terror. मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्टर की सहायता से स्विमिंग सीख ली थी, पानी का डर इंस्ट्रक्टर ने बाहर निकाल लिया था, लेकिन फिर भी उनको अपने आप पर ये विश्वास नहीं था कि डर उनका मतलब हमेशा के लिए जा चुका है. तो उन्होंने इस बात को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वो डर उनका बाहर गया या नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था, तो उन्होंने खुद ही अपने इस डर को बार बार चेक किया. उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज में स्विमिंग करने स्टार्ट कर दी. There was no reason at all. Once he took courage, the fear vanished. The shows most of our fears are baseless. Fear creates dangers where there is none. The writer experience further confirmed the provided truth. Where there is a will, there is a way. मतलब पहले उन्होंने छोटे वाटर सोर्सेज को यूज किया, पोल को यूज किया, अकेले उसमें स्विमिंग करने शुरू की, और जब वो स्विमिंग करने जाते थे तो बीच में उसके वो डर उन पर हावी हो जाता था, लेकिन जैसे ही डर हावी होता तो वो उसको वार्न करते कि नहीं, यू कैन नॉट फ्राइटन मी, एंड ही गो फॉरवर्ड. इस तरीके से उन्होंने अलग अलग लेक में, सीज में, रिवर में अपनी प्रैक्टिस की, और फाइनली he overcome his fear of water and he had become a famous swimmer also. Okay, so this was the chapter deep water, and in this chapter he shared his fear of water and how did he overcome this fear of water. So what is the misadventure that William Douglas speaks about? Now in this question he is asking the question, what is the misadventure? कौन सा मिस एडवेंचर है जो नैरेटर हमको बताते हैं. अब यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ें शेयर की थी, ठीक है, लेकिन वो मिस एडवेंचर नहीं था जो बचपन का था, 3 और 4 इयर्स का, ठीक है, लेकिन मेन मिस एडवेंचर वो था जो YMCA पूल में हुआ था व्हेन ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड. विलियम डगलास हैड जस्ट लर्न स्विमिंग. वन डे एन 18-year-old brother picked him up and tossed him into the Nile. We never confused on this topic that what was the misadventure of his life. The misadventure of his life was the incident of YMCA pool when he was tossed into the deep water by a bully boy. Okay, he hit the water surface in a sitting position. He swallowed water and went at once to the bottom. He nearly died in his misadventure. So this was the misadventure. Next question is, why was Douglas determined to get over his fear of water? Why he decided to get fear of his water, या why he decided to learn swimming? Douglas regretted being deprived of enjoying. Why? Because he was deprived of, वो इन सबसे वंचित हो चुका था जिन्हें वो करना चाहता था. वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहता था, जैसे कैनोइंग, स्विमिंग, वाटरफॉल. ओके, so water activities like canoeing, boating, swimming, fishing, etc. So the wish to enjoy them and the craving to regain his lost confidence while being in water made him try every possible way to get rid of his fear. He was finally able to overcome his mental handicap by getting himself a swimming instructor and further ensuring that no residual fear was left. Okay, so this was the determination of to get over fear of his water. Okay, to enjoy water games, he decided to learn swimming, and for that he hired an instructor and he do practice in it. How did Douglas overcome his fear of water? You will find out the answer of this question from the chapter yourself. This is the answer of this question. Okay, so after his misadventure in the pool at YMCA Douglas, so I am not going to tell you. Thank you students. These are the difficult words of this chapter: treacherous, unpredictable or dangerous. Okay, and subdued my pride means to lower or restrain the intensity of self-respect and confidence. Feel at the surface, to strike or lash out. Vigorously at the surface, the water in trying to come on. Fishing for landlocked. Okay, these are the meaning of the words, difficult words. You can write it. Thank you students.